Hi guys, good morning. So today we are taking a very important concept that is of electrochemistry, and that is quantitative aspects of the electrolysis process. So in previous lecture that we have been discussed about the electrolytic cell construction as well as the working of the electrolytic cell, where completely we have been discussed how the oxidation half reaction and the reduction half reactions that will be carried out in the electrolysis process, where again we have been discussed the product that is to be formed when the electrolysis of the molten NaCl as well as the electrolysis of the aqueous sodium chloride that takes place. दो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना था. नाउ वी आर कमिंग ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट आर द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो पहले तो थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट एक तरफ लेके जाने वाले हैं, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की बात करते हैं. हमको पता है that when we are talking about the electrolysis process of the molten sodium chloride, sodium ion that gets deposited under the passage of the electric current towards the cathode, and the chlorine molecule that will be liberated at anode. ये concept हम लोगों ने लिया है. It means that the amount of the substance that is deposited at one electrode and the amount of the substance that will be evolved out at the another electrode, that is what the concept. वही concept को हम लोगों को यहाँ पे लेना है कि that under the heading of the quantitative aspects of the electrolysis. लेकिन एक scientist होके गया, that scientist was Faraday, where these are Faraday that gives the relation, that gives the concept that is related with the amount of the substance deposited and the quantity of the electricity that is to be passed through the electrolytic solution. Now the concept is that अगर हम लोग Faraday's law, हालांकि हम लोगों के that in the 12th syllabus say that the Faraday's law is not there, only the quantitative aspects of electrolysis are there. So that's why I say that only I am making here that the one statement for the Faraday's first law as well as the Faraday's second law of the electrolysis. भाई इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फैराडे ने जो लॉ दिया, वो पहला लॉ क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड. मानो that the amount of the substance that is the W, if it is deposited at any electrode of the electrolytic cell, then that will be directly proportional to the amount of the quantity or the quantity of the electric current that is passing through the electrolytic solution. And यहाँ पे this is the Faraday's first law of electrolysis. So amount of the substance deposited at any electrode, that will be directly proportional to the quantity of the current electricity that is passing through it. So this is the Faraday's first law. Faraday's ने दूसरा भी एक लॉ दिया है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, और वो लॉ की अगर हम लोग बात करें तो that they have been connected the two or more electrolytic cell in a series. दो या दो से ज्यादा सेल्स को उसने सीरीज से कनेक्ट किया, and the condition was given when the same quantity of the electricity that is to be passed when they are connected in series, the same quantity of the current is passed for the same time, then the amount of the substance deposited at any electrode, that will be directly proportional to their chemical equivalents. यानी अगर यहाँ पे कंसेप्ट की अगर बात करें तो that whatever the W is there, that is directly proportional to say that is the chemical equivalent E. This is what the Faraday's second law of the electrolysis. ये हम लोगों को इसलिए लेना है कि जब हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो हमको पता चलना चाहिए कि that what amount of the substance that is deposited at any electrode. ये कैसे होता है? क्यों तो हम लोगों ने कल देखा है, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि that is the sodium that gets deposited at the cathode and the chlorine gas that will be evolved at say that is the anode.
जब फ्यूज्ड NaCl की बात होती है तो ये होता है, जब एक्वियस सोडियम क्लोराइड की बात अगर होती है तो यहां पे हम लोगों ने देखा है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल दैट विल बी इवॉल्व इवन दो ऑक्सीजन वाज देयर, लेकिन क्लोरीन का जहां पे ऑक्सीडेशन का रेट जो होता है वो ज्यादा होता है, वहां पे क्लोरीन का इवोल्यूशन होता है एंड सी दैट इज at the same time see that we are getting here that is the hydrogen molecule, ये हम लोगों ने देखा है. Now once we know that the Faraday's law of the electrolysis, first law of the electrolysis as well as the second law of the electrolysis, now we are coming कि उसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों को 3 पॉइंट्स के लिए बोलना है. that the first point is that the calculation of the electricity that is to be passed, मैंने पहले ही बोला है Faradays ने ये लॉ दिया है, the amount of the substance that is deposited that will be directly proportional to the quantity of current, the amount of the electricity that is to be passed through the electrolytic solution. यानी यहां पे हमको पता चलेगा कि अगर मुझे कितना इलेक्ट्रिक पास किया that the if I know that the quantity of the substance that will be directly proportional to the amount of the current, यानी आप यहां पे करंट निकाल सकते हो. So say that whatever the charge is there, that whatever the charge is there, that these the charge is nothing, it's a product of current and time. So that the Q is the charge, where the Q that is in the coulomb, charge that is to be measured in the coulomb, that is equals to I is the current that is to be measured in the ampere into time that is to be measured in the second. Isn't it? So this is the first quantitative aspects to measure the electricity that is to be passed. So that the electricity का मतलब ये होगा that whenever we are taking that by this formula that is Q equals to I into T, that we can measure the current. बराबर समझ में आ रही है? Getting this? It's a very simple. Now we are coming also, that is the second aspect. Calculation of the moles of the electron passed. See, this is the very important. ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समझने के लिए आपको कंसेप्ट वाइज अगर देखें तो आपको बराबर समझना है कि इलेक्ट्रॉन का रोल क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस के अंदर में क्या होता है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा. देखिए मैं यहां पे बात करता हूं, जैसे कि यहां पे बोला है कि दैट द Q इज द क्वांटिटी ऑफ द कूलम, दैट द Q कूलम, Q इज द चार्ज. जब Q कूलम चार्ज होता है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 1 फैराडे. वो 1 फैराडे का मतलब होगा 96500 कूलम. अरे 1 फैराडे कूलम का मतलब ये होगा कि दिस मच ऑफ कूलम, कितना चार्ज कितना है, Q इज दिस मच ऑफ कूलम 96500 कूलम, दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे. अब हम लोग यहां पे बात करेंगे जब Q कूलम चार्ज पास होगा तब चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, इतना होगा 96500. वो क्वांटिटी को बोला जाता है 1 फैराडे. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर दैट इज द 1 फैराडे. सो दैट द 1 फैराडे इज नथिंग, दैट इज इक्वल्स टू 96500 कूलम. ओके, यस. नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन. देखिए यहां पे रिएक्शंस, इफ आई वांट टू मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज अ पास, तो यहां पे हम लोगों ने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या वो निकालने के लिए हमको क्या करना, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. देखिए मैंने यहां पे पहले बोला कि व्हेन द Q कूलम ऑफ द चार्ज इज देयर, तब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 96500. यानी यहां पे नंबर ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉन पास अगर होते तो दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन 96500 कूलम. दिस इज द वेरी सिंपल फॉर्मूला, isn't it? So that is the charge that is to be measured in the coulomb, and see that is the 96500 coulomb per mole per electron. And हम लोग एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, so that whatever the moles of the electron actually pass, that is equals to, that is nothing, that is the Q by 96500. This is very simple equation. यानी एक इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, एक इलेक्ट्रॉन पास करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, Q by 96500. बराबर समझ में आ रही है. Then we come on the next one, that is the calculation of moles of the product form. क्यों, तो जब तक के ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जब तक के रिडक्शन हाफ रिएक्शन नहीं होगी, तब तक के कोई भी सब्सटेंस वहां पे डिपॉजिट नहीं होगा, कोई भी सब्सटेंस वहां से इवॉल्व नहीं होगा, जो कि फैराडेज फर्स्ट लॉ के अंदर में बिल्कुल क्लियर कट बताया कि वॉट एवर द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द amount of the
current that is passed through the electrolytic solution, यानी यहां पे रिएक्शन होना है। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि दैट वॉट एवर द अमाउंट ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वहां पे फॉर्म होगा, जो सब्सटेंस वहां पे डिपॉजिट होगा, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, मोल्स कैसे निकालेंगे। देखिए एक एग्जांपल की बात करता हूं। मानो अगर एक रिएक्शंस के अंदर में कॉपर डिपॉजिट होता है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही है और वहां पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अब कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर दैट गेट्स डिपॉजिटेड ओनली बिकॉज ऑफ द रिडक्शन। तो यहां पे हम लोगों ने रिएक्शन दी है। We'll see that is the two copper, two positive charges. When it gains the two electron, then it will be converted into the copper. ये कॉपर की रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। यानी अगर हम लोग ये रिएक्शंस की अगर बात अगर करें तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, that we are getting the 1 mole of the copper. Yes, 1 mole of the copper. लेकिन 1 मोल कॉपर का बनने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ा? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। That when we take the 2 moles of an electron, then we get the 1 mole of copper. बराबर है? That this is the concept. बस यही होगा कि मोल रेशियो हम लोगों को निकालना है यहाँ पे। क्यों? तो हम लोगों को पता है कि the moles of the electron actually pass, that is the Q by 96500। अब हम लोगों को मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म के लिए जैसे हम लोगों को मोल रेशियो, क्यों? तो हम लोगों ने रिएक्शन लिए। ये मोल रेशियो के अंदर में क्या होगा? व्हाट इज मोल रेशियो? मोल रेशियो इज नथिंग, इट इज द मोल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म टू द मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन हाफ रिएक्शन। इट इज द रेशियो बिटवीन दिस, और से मोल रेशियो दैट इज इक्वल्स टू द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन द हाफ रिएक्शन। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो देखिए क्या होगा मोल रेशियो, व्हाट विल बी द मोल रेशियो। देखिए ना कितना सिंपल है, मोल रेशियो निकालना कितना सिंपल है। अब हम लोग मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की बात करेंगे। प्रोडक्ट कितना तैयार होगा अभी? 1 मोल, यानी ये हो गया 1 मोल। और यहां पे लिखा है कि मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन द हाफ रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं रिएक्शन के लिए? हाफ रिएक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो दैट्स व्हाई से दैट इज द 1/2 इज द मोल रेशियो दैट इज ऑफ कॉपर। समझ में आ रही है? ठीक है। सो दिस इज व्हाट द वेरी सिंपल प्रोसेस, दीज आर द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। हम लोग अगर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो यहां पे इस तरीके से हम लोगों को उसका कैलकुलेशन। अब देखिए नेक्स्ट, अभी तक हम लोगों ने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं फॉर्म किया, हम लोगों को मोल रेशियो मिला। मोल रेशियो के अंदर में हमने बोला कि दैट इज द रेशियो दैट इज द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म टू द मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। बराबर है। चलो हम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की बात करेंगे। Now what is the moles of the product that will be formed? That is the formula. What is the formula for the moles of the product form? Yes, that is equals to the moles of the electron actually pass, moles of the electrons actually pass multiplied by mole ratio. But we know that moles of the electron actually pass is the Q upon 96500. ये यहाँ पे हम लोगों ने लिया है। This is what say that is the moles of the electron actually pass, that is the Q upon 96500. Multiplied by mole ratio. So what is the Q? Q is the charge. जैसा कि हम लोगों ने बोला है that this is the Q charge that is equals to I into T. So by substituting the value of the Q, we get the value is that is the I into T divided by the 96500 multiplied by the mole ratio. यानी ये फॉर्मूले में अगर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अगर निकालना है तो दैट वी गेट हियर दैट इज द फॉर्मूला दैट इज मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास दैट इज द I into T divided by 96500 multiplied by मोल रेशियो। ठीक है, समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट द फॉर्मेशन दैट इज द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। एंड लास्टली वी कम ऑन द कैलकुलेशंस ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट। अभी आप लोगों ने प्रोडक्ट तो निकाल लिया, कितने मोल्स आपको प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन उसका मास कैसे निकालोगे? देखिए दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि अगर हम लोग यहां पे मास की अगर बात करें तो सी दैट इज द मास ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज द कैपिटल एब्रिविएशन हम लोगों ने यूज किया है, कैपिटल W, मास ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज इक्वल्स टू द मोल ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, अगर हम लोग यहाँ पे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की अगर बात अगर करें तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी तय किया। बराबर है, दैट इज द I into T और द Q upon 96500 into मोल रेशियो। सो दैट इज द मोल प्रोडक्ट का मतलब होगा Q upon 96500 मल्टीप्लाइड बाय मोल रेशियो मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोडक्ट। बराबर है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की अगर बात अगर करें तो हम लोगों को फैराडेज का सेकंड लॉ आपको पता होना चाहिए।
हालांकि वो हमारे इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दो सेल्स अगर होते या दो से ज्यादा सेल होते, एक सेल होगा कि जिसके अंदर में हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट रखा है, दूसरे सेल में हमने कॉपर सल्फेट रखा है, तो शायद सिल्वर इलेक्ट्रोड पे सिल्वर का डिपोजिशन या तो कॉपर का डिपोजिशन अगर होता है, तो यहाँ पे दो सेल्स अलग अलग है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज, then the amount of the substance deposited that will be directly proportional to the their chemical equivalent. The condition कब होती है? When they are connected in the series and the equal quantity of the electricity that will be passed. The same quantity of the current that will be passed through all the electrolytic cell for the same time, then whatever the substance that will be deposited, यानी अलग-अलग cells अगर हो गए तो अलग-अलग cells के ऊपर अलग-अलग substances वहां पे जमा होंगे. So that every substance that will be, that whatever the amount of the substance deposited over here, that will be directly proportional to the chemical equivalent. फिर बाद में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, भाई हमारे पास अगर W1 पहला एक सब्सटेंस जमा हो रहा है जिसको हम लोगों ने W1 माना है, मास ऑफ द प्रोडक्ट इज द W1, पहले सेल में W1, वेट ऑफ द सब्सटेंस इज द W1, देन मास ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? सी दैट इज द moles of the electrons actually pass, that is the Q upon 96500, उसका मोल रेशियो होगा. मोल रेशियो ये होगा जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है कि that the moles of the product divided by the number of electron that will be required for their half reaction, बराबर है. so that the, इसका पहले इसका मोल रेशियो होगा 1, so W1 के लिए मोल रेशियो 1, so weight of the mass of the product that is equals to the mass of the electrons actually pass multiplied by molar ratio multiplied by molecular mass. molecular mass अगर वो W1 अगर होगा substance, तो उसका molecular mass कितना होगा? M1 होगा. so therefore we are getting here that is the W upon 96500 is equals to W1 upon molar ratio of 1 multiplied by MO. see, मुझे W1 निकालना है, ये फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला W1 अगर निकालना है तो दैट द W1 दैट इज इक्वल्स टू, से दैट इज द W1, अगर हमको W1 अगर निकालना है तो Q मल्टीप्लाइड, ये रिलेशन इज देयर, दैट ऑल द फॉर्मूलाज दैट वी नो. तो अगर कोई वेट अगर निकालना है, मास ऑफ द प्रोडक्ट अगर निकालना है, तो मास ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन 96500 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन से दैट इज द मोलर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 1. ये फॉर्मूला अगर तय अगर हो जाता है, ये फॉर्मूला अगर मुझे मिलता है, तो बाय टेकिंग और बाय कंसीडरिंग दिस अ फॉर्मूला दैट वी कैन कैलकुलेट हियर दैट इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस और द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, गेटिंग दिस W1. इसी तरीके से कोई दूसरा सेल होगा, सो दूसरे सेल पे W2 निकलेगा, सेम फॉर्मूला Q अपॉन 96500 इज इक्वल टू W2 अपॉन मोल रेशियो जो होगा उसका सेकंड मोल रेशियो 2 मल्टीप्लाइड बाय से दैट इज द मॉलिक्यूलर मास 2, बराबर है. सो बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज दैट वी कैन डिटरमाइन हियर दैट इज द मास ऑफ द प्रोडक्ट. न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, हो सकता है, बट से दैट दिस इज द वेरी ब्रेक. लेकिन इसके लिए आपको फैराडेज लॉ पता होना चाहिए. इसके प्रीवियस सिलेबस में फैराडेज लॉ वाज देयर, लेकिन अभी नहीं है. सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होने के कारण हम लोगों ने डायरेक्टली ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पे बात की. ओके, समझ में आ रही है? क्लियर? और कुछ यहाँ पे बिल्कुल सभी चीजें बिल्कुल थोड़ा सा ही कंसेप्ट है, समझने के लिए बहुत आसान कंसेप्ट है. सो दिस इज व्हाट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, थैंक यू.